Ninth Class Lecture 2 The Savior of Mankind Life and Teachings of Hazrat Muhammad, peace be upon him. The life of the Prophet, peace be upon him. His teachings for humanity. A mercy for all mankind. A complete lesson for better understanding. Lecture number 2, Part B. खुलासा. मैं आपको पैराग्राफ नंबर 3 और 2 का खुलासा बताया जाएगा. I will tell you the summary of paragraph number 3 and 2. English की translation. English की translation सुनाई जाएगी. The English translation will be heard. Tense. इसका tense बताया जाएगा. Its tense will be explained. तर्जुमा. आखिर में सबक का तर्जुमा बताया जाएगा. In the end, the lesson will be translated. अरबों की याददाश्त, शायरी और कुरान मजीद. उक्काज़ का कबीला अरब लोगों की याददाश्त बहुत मजबूत थी और वो बहुत अच्छा बोलते थे. वो अपने ख्यालात ज़्यादातर शायरी के ज़रिए बयान करते थे. हर साल उक्काज़ के मेले में शायरी के मुकाबले होते थे, जहां बेहतरीन शायर अपनी नज़में सुनाते थे. अरबों को अपनी शायरी इतनी अच्छी तरह याद होती थी कि वो सैकड़ों नज़में ज़बानी सुना सकते थे. इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब फरमाया ताकि उसका पैगाम सही और महफूज रहे. खुलासा. 5वीं और 6ठी सदी में दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा बुराइयों और जहालत में मुब्तला थे. ऐसा लगता था कि अच्छी तहजीब और इंसानियत ख़त्म होती जा रही है. इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को जहालत से निकालकर ईमान, सच्चाई और नेकी की रोशनी की तरफ ले जाएं. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam." It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Tense, simple past. Tense wadahat, English. This sentence tells us about the Arabs in the past. It says they had a very strong memory and were good speakers. Wadahat, Urdu, ये जुमला माजी की बात करता है. उसमें बताया गया है कि अरबों की याददाश्त बहुत मजबूत थी और वो बेहतरीन मुकर्रर थे. Past verb, possessed बराबर रखते थे, where बराबर थे दो. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Tense, simple past. Tense wadahat, English. It means their speaking skills and memory were shown in their poetry. वदाहत, उर्दू. इसका मतलब है कि उनकी फसाहत और मजबूत याददाश्त उनकी शायरी में नजर आती थी. पास्ट वर्ब, फाउंड बराबर जाहिर हुई सुलेश नजर आई 3. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. Tense, simple past tense, passive voice. Wadahat, English. Every year a poetry competition was organized at Ukaz. वदाहत, उर्दू. हर साल इकाज में शायरी के मुकाबले मुनाकद किए जाते थे. पास्ट पैसिव. वर्ब was held बराबर मुनाकद किया जाता था चर. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid. Tense is narrated simple present. Passive said simple past वदाहत. English. People still narrate this story today. Hammad told Caliph Walid bin Yazid something in the past. वदाहत, उर्दू. ये वाक़या आज भी बयान किया जाता है, जबकि हमाद ने ये बात माजी में खलीफा वलीद बिन यजीद से कही थी. वर्ब्स इज नैरेटेड इक्वल्स बयान किया जाता है. प्रेजेंट पैसिव. सेड इक्वल्स कहा पास्ट. आई कैन रिसाइट टू यू. टेंस मॉडल वर्ब आन कैन इदाहत, इंग्लिश. Hamid says he is able to recite many poems. वदाहत, उर्दू.
हमाद कह रहे हैं कि वो बहुत सी नज़में सुना सकते हैं। वर्ब, कैन रिसाइट बराबर सुना सकता हूँ। All of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Tense, simple past. Passive wadahat, English. These poems were written by Arab poets before Islam. Wadahat, Urdu. ये तमाम नज़में इस्लाम से पहले अरब शुआरा ने लिखी थीं। Past passive verb was composed nextlan, लिखी गई थी साथ। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language. Tense is consistent sabab में, लेकिन नीन simple present chose, simple past wadahat, English. It is not surprising today that Allah chose Arabic in the past for the Holy Quran. Wadahat, Urdu. ये कोई हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताली ने माजी में कुरान मजीद के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब फरमाया। वर्ब्स इस बराबर है प्रेजेंट, चोज बराबर मुंतखब किया पास्ट। इस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले टेंसेस टेंस, मिसाल सिंपल पास्ट, टेंस पोजेस्ड, वर, फाउंड, सेड, चोज। सिंपल पास्ट, पैसिव was held, was composed simple, present. Tense is simple present, passive is narrated. Modal verb can recite याद रखने का आसान तरीका, simple past. माजी में होने वाला काम, possessed, said, chose. Simple present, हमेशा की हकीकत या मौजूदा बात, is. Past passive, काम हुआ लेकिन करने वाला अहम नहीं, was held, was composed. Present passive, आज भी बयान किया जाता है, is narrated. Modal, sen. सलाहियत या कुदरत, कैन रिसाइट। अरबों की याददाश्त, फसाहत और शायरी अरब लोग बहुत अच्छी याददाश्त रखते थे और बहुत अच्छा बोलते थे। वो अपनी खूबसूरत बातें और ख्यालात ज़्यादातर शायरी के ज़रिए बयान करते थे। हर साल इकाज़ के मकाम पर शायरी का एक बड़ा मेला लगता था, जहां शायर अपनी नज़में सुनाते और मुकाबला करते थे। रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको हुरूफ तहजी के हर हर्फ पर 100 लंबी नज़में सुना सकता हूं और उसमें छोटी नज़में भी शामिल नहीं हैं। ये सारी नज़में इस्लाम आने से पहले के शायरों ने लिखी थीं। उससे मालूम होता है कि अरबी ज़बान बहुत खूबसूरत, मजबूत और इल्म व अदब से भरपूर ज़बान थी। इसीलिए अल्लाह ताली ने अपने आखिरी दीन और अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब फरमाया ताकि उसका पैगाम हमेशा महफूज रहे। 1. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. Tense, simple. Past tense wadahat, English. This sentence tells us about a situation in the past. It says that people were very close to chaos and disorder. Wadahat, Urdu. ये जुमला माजी की एक हालत बयान करता है। इसमें बताया गया है कि 5वें और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही और इंतशार के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। वर्ब, स्टूड बराबर खड़ी थी, सुलेश मौजूद थी। 2. It seemed that the civilization. Tense, simple past tense वदाहत, English. The sentence describes what people thought or felt in the past. वदाहत, उर्दू। ये जुमला माजी में लोगों के एहसास या तासुर को बयान करता है कि ऐसा लगता था। वर्ब, seemed बराबर ऐसा लगता था 3. That which had taken 4,000 years to grow. Tense, past perfect tense, wadahat, English. This shows an action that was completed before another action in the past. Civilization had already taken 4,000 years to develop. Wadahat, Urdu. ये टेंस बताता है कि एक काम माजी में दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका था, यानी तहजीब को तरक्की करने में 4,000 साल लग चुके थे। वर्ब, had taken बराबर लग चुके थे 4, had started crumbling. Tense, past perfect. Tense वदाहत, English. The civilization had already begun to fall apart before the next event happened. वदाहत, उर्दू। इसका मतलब है कि तहजीब पहले ही जवाल का शिकार होना शुरू हो चुकी थी। वर्ब, had started बराबर शुरू हो चुकी थी, crumbling बराबर बिखरना, सलेश जवाल पजीर होना 5. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves. Tense, simple past tense wazahat. English. This sentence tells us what Allah Almighty did in the past. Wadahat, Urdu. ये जुमला बताता है कि अल्लाह ताली ने उस वक्त लोगों में एक रसूल भेजा। वर्ब, raised बराबर भेजा,
सुलेश मबोज फरमायाच och modetcha to lift the humanity from ignorance into the light of faith. Tense, infinitive to plus verb. Wadahat, English. This part tells the purpose of sending the Rasul. It is not a tense. It explains why Allah sent the Rasul. Wadahat, Urdu. ये हिस्सा किसी टेंस में नहीं है बल्कि इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब है जो मकसद बयान करता है कि रसूल को क्यों भेजा गया। वर्ब टू लिफ्ट बराबर निकालने के लिए सुलेश उठाने के लिए उस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले टेंसेस सेंटेंस टेंस मेन वर्ब मनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos. Simple past stood it seemed. Simple past seemed had taken 4,000 years. Past perfect had started crumbling. Past perfect had started Allah Almighty raised a Rasul. Simple past raised to lift humanity. Infinitive purpose. To lift याद रखने का आसान तरीका सिंपल पास्ट टेंस माजी में होने वाला काम। एग्जाम्पल्स स्टूड सीम्ड रेज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस माजी में एक ऐसा काम जो दूसरे माजी के काम से पहले मुकम्मल हो चुका हो। एग्जाम्पल्स हैड टेकन हैड स्टार्टेड इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब मकसद या इरादा बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, यह टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल टू लिफ्ट 5वें और 6वीं सदी में दुनिया के लोग बहुत ज्यादा बुराइयों जुल्म और जहालत में मुब्तला थे। ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसे बनने और तरक्की करने में 4000 साल लगे थे अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। ऐसे ही मुश्किल वक्त में अल्लाह ताली ने लोगों ही में से एक रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो इंसानों को जहालत और गमराही से निकालकर ईमान, सच्चाई और हदायत की रोशनी की तरफ ले आएं।